جو پاکستان زندہ باد کے نعرے کشمیر میں لگائے گے یا انڈیا میں لگائے گا, ہم سب کو لگتا ہے کہ وہ غلط. 3 سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے یتیم بچے کشمیر کے اندر ہوں گے. اب دیکھیے ہر دن یہاں بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے. میرے حساب سے سب سے بڑی آزادی کشمیر کے لیے وہی ہوگی جس دن یہاں پہ گن پہ سیل لگ جائے گی, جس دن یہاں پہ سیز فائر ہوگا, جس دن یہاں دونوں طرف کا گن بند ہوگا, جس دن یہاں خون بہنا بند ہوگا. میرے لیے سب سے بڑی آزادی وہی ہے. مسلمانوں کے خلاف قانون سارے استعمال کرتے ہیں, جب نان مسلم کی بات ہے تو وہاں نہیں کرتے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے آرٹیکل ہٹایا, الیگل کیا, ہم سپریم کورٹ میں فائٹ کریں گے, آرٹیکل کو واپس لے کے آئیں گے, لیگلی فائٹ کریں. ہم آپ کی طرف تھوڑی ایسے ہوا میں باتیں پھینکتے ہیں, وہاں سب کچھ صحیح ہے. انہوں نے کہا تھا ہم نوجوانوں کے ساتھ بات کریں گے, لیکن انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا ہم کون سی بات, انہوں نے کہا نا ہم یہ پی لگائیں گے یہاں کے نوجوانوں پہ, ہم پی ایس اے لگائیں گے یہاں کے نوجوانوں پہ, ہم سیڈیشن لگائیں گے یہاں کے نوجوانوں. انہوں نے وہی بات کہی تھی. آپ خامخواہ میں بیچارے کشمیری کنفیوز کر گئے, یہ شاید بول رہے ہیں ہم بات کریں. آپ نون کلرز کو سزا نہیں دیتے ہیں تو انون کو کیا دیں گے. اب دیکھیں وکرم رنڈاوا کی آپ بات کیجئے, اس نے کتنا اناب شرح مسلمانوں کے خلاف پرسوں بولا. اگر اس سرکار کی نیت صحیح ہوتی تو اس میں بھی ایف آئی آر لگا. اگر اتنا گناہ ہے پاکستان کے خلاف بولنا یا پاکستان کے ساتھ بات کرنا یا ان کے ساتھ ہاتھ ملانا, سب سے پہلے دیش کے پردھان منتری جو پاکستان میں جا کے بریانی کھا کے آئے ان پہ ایف آئی آر لگنا چاہیے. ہمارے جو فیوچر ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ اسکمز کے ہوں چاہے وہ جی ایم سی کے ہوں, ان پہ یو اے پی اے لگایا گیا جو کہ ٹیررسٹ کے لیے یوز کیا. سب کو پتا کہ اس کو جو ہے کہ کس وجہ پہ مارا گیا اور کنہوں نے مارا, کس کی گولی سے وہ مارا گیا, لیکن تب بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لی گئی, بلکہ بات تک نہیں کی. سرکار کو نہیں, ہم سب کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے. جو پاکستان زندہ باد کے نعرے کشمیر میں لگائے گے یا انڈیا میں لگائے گا, ہم سب کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے. کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ظلم ہو رہا ہے ان کو اریسٹ کر کے, لیکن جب کشمیری نوجوان ہمیشہ ایسی حالات برقرار رکھتے ہیں تو کہاں سے امن آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں BK نیوز اور میں آپ کا خادم, آپ کا اپنا بھائی عنایت عادل. ناظرین, آج آپ جس شخصیت کو ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں بخوبی آپ ان کو جانتے ہوں گے, کیونکہ بار بار ہمارے چینل پہ ان کے بیانات آتے رہتے ہیں, ان کے انٹرویوز آتے رہتے ہیں. تو جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پھر بھی عادل نذیر خان صاحب سے آج آپ کی بات کروا رہے ہیں. تو عادل نذیر خان صاحب, سب سے پہلے آپ کا BK نیوز میں ایک بار پھر سے ویلکم کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی عادل صاحب, سیم وہی ٹاپکس رہیں گے جن پہ ہم بار بار بات کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پھر سے اسی انڈیا پاکستان میچ کو لے کر. تو عادل صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے جیت پر جو وادی کشمیر میں جشن منایا گیا, پٹاخے پھوڑے گئے, تو اس کے بعد کشمیر نوجوانوں پر یو اے پی اے کے ایکٹ کے تحت جو ہے جیلوں کے اندر بھرا گیا, یا جو ہمارے چاڈورا یا بانڈی پورہ کے 3 لڑکے جو ہیں جو آگرہ میں زیر تعلیم تھے, ان کو بھی جیلوں کے اندر بھرا گیا. تو آپ اس پورے معاملے پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, جہاں تک پاکستان انڈیا کا جو میچ ہوا تھا کچھ دن پہلے, تو میں تو اب اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا وہ کشمیری اسٹوڈنٹس کے, کشمیر کے نوجوانوں پر قہر بن کے آیا, جس کی وجہ سے تقریباً یہاں بہت سارے ہمارے جو فیوچر ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ اسکمز کے ہوں چاہے وہ جی ایم سی کے ہوں, ان پہ یو اے پی اے لگایا گیا جو کہ ٹیررسٹ کے لیے یوز کیا جاتا تھا, تو ان پہ وہ لگایا گیا. اور ہمارے 3 معصوم جو غریب ہمارے بچے باہر پڑھنے گئے تھے یو پی میں آگرہ میں, ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, ان پہ سیڈیشن چارجز لگا دی گئی. میرے حساب سے تو میں اب اسی نظر سے اس میچ کو دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے اس کٹر سرکار نے, اس کرور سرکار نے, جو کہ ہمیشہ جس کا نام ہی اس چیز پہ ہے کہ یہ ظلم کرتی ہے, تو انہوں نے پھر سے وہی دکھایا. کشمیر کے بچوں کے کیریئر کے پر قہر بن کے آیا یہ. عادل صاحب, اگر جو اس کنٹری کے نعرے لگائے گا اس کی جیت پر, اور اگر ہمارے ملک ہارتی ہے ان سے, ہماری ملک کو وہ ہراتے ہیں, پھر بھی ہم اسی کو سپورٹ کر کے, جبکہ ہمارے اندر اس ٹائم دکھ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپوزٹ کنٹری جو ہماری دشمن کنٹری ہے انہوں نے آج ہمیں ہرایا, تو اس بات پر ہمیں دکھ ہونا چاہیے, لیکن ہم پھر بھی اس کنٹری کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیے, سپورٹ کرنا کس کو کرنا, یہ کرکٹ ہے. کرکٹ میں کیا دیکھنا, یہ تھوڑی جنگ ہو رہا ہے, ہندوستان پاکستان کا تھوڑی بارڈر پہ جنگ ہو رہا تھا, آپ کو کس کنٹری کو سپورٹ کرنا تھا. اب بچوں نے یہاں پٹاخے پھوڑے, آپ کرکٹ میں کسی کو دیکھیے. اب نہیں, اگر آپ نے یہاں کی ویڈیوز دیکھے ہوں گے جو ہماری چینل پہ بھی آئے تھے کہ یہاں پر جیوے پاکستان کے نعرے لگائے جاتے تھے, پاکستان زندہ باد کے نعرے. دیکھیے, جہاں تک یہ سوال ہے نا کہ انہوں نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے یا پٹاخے پھوڑے, اگر یہ گناہ ہے میں مانتا ہوں, چلو اگر سرکار کو لگتا ہے یہ غلط ہے,
इनको नहीं करना चाहिए। पहले सरकार को उन सब सवालों का जवाब लगाए जाते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं ना, अगर 70 साल से आप झूठ बोल रहे हैं हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ सब कुछ हमारा है, सब कुछ, आर्टिकल हटाने के बाद आपने कहा था सब कुछ हो गया सही, यहाँ पीस आ गया, यहाँ आपको देखिए कश्मीर, देखिए ये दो तरफा होता है। अगर बच्चू ने यहाँ गलती की, मैं मानता हूं, चलो डॉक्टर बच्चू ने गलती की थी, क्या अमित शाह का फर्ज नहीं बनता था उस टाइम वो सिक्किम जाए? क्या उनका फर्ज नहीं बनता था वो जीएमसी जाए, उन बच्चों से बात करे कि आपने क्यों नारे लगाए? आपके पास पासपोर्ट यहाँ का, आपके पास आधार कार्ड यहाँ का, आपके पास जो खाना पीना, जो आपका रहना सहना, आपकी इवन सर्टिफिकेट जो आप डिग्री ले रहे हैं उस पर भी आपका गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया हाथ लिख के आता। आपने क्यों पाकिस्तान के नारे लगाए? आपने क्यों उनके हक में पटाखे फोड़े? क्या उनका हक नहीं बनता था? वो नहीं करेंगे क्योंकि इनको इससे फायदा मिलता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का, और क्या मिलता है इनको? नहीं, इसमें कहां से हिंदू मुस्लिम की राजनीति आ गई? देखिए, अगर इतना गुनाह है पाकिस्तान के खिलाफ बोलना या पाकिस्तान के साथ बात करना या उनके साथ हाथ मिलाना, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा के आए उन पे एफआईआर लगना चाहिए। उसके बाद उन सब, देखिए आप बात कीजिए यहां विराट कोहली ने या अक्षय कुमार जो वहां मैच देख रहा था, जब हिंदुस्तान मैच हारा तो उसके बाद पाकिस्तान उनके साथ गले मिल रहा था, उनके साथ सेल्फी ले रहा था। विराट कोहली जो उनके साथ गले मिल रहा था, उनके साथ हाथ मिला रहा था। महेंद्र सिंह धोनी जो दो बार वहां देखा गया, जो आप देखिए जब रिसेंटली अभी पाकिस्तान ने जब मैच हराया न्यूजीलैंड को, उस दिन यहां के बहुत सारे, हरभजन सिंह ने, बहुत सारे प्लेयर्स ने पाकिस्तान को बधाई दी उनको। क्या उन पे एफआईआर नहीं लगना चाहिए? अगर आप उधर नहीं लगाते इधर लगाते तो वही तो हिंदू मुस्लिम का होता है। आप उधर लगाते हैं इधर नहीं, क्योंकि उसमें आपको राजनीति चाहिए। अब देखिए विक्रम रंधावा की आप बात कीजिए, उसने कितना अनाप शराब मुसलमानों के खिलाफ परसों बोला। अगर इस सरकार की नीयत सही होती तो उसमें भी एफआईआर लगाते, उसको अरेस्ट करते, उसको पार्टी से बाहर करते। अल्लाह विक्रम रंधावा की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसकी एक बात को लेकर मैं आपसे वजाहत चाहूंगा कि उन्होंने एक बात किसी हद तक जो है सही कही कि जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से हारा, अगर पाकिस्तान के साथ इतनी मोहब्बत है, अगर पाकिस्तान की जीत पर इतनी खुशी है, उस टाइम इनकी खुशी कहां गई थी? ये सिर्फ जो कश्मीरी लोग हैं ये सिर्फ हिंदुस्तान की हार देखना चाहते हैं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कहा पूरा कश्मीर। ये तो पिछले 70 साल से बोल रहे हैं, बस 5% वहां लोग हैं जो पाकिस्तान की बात करते हैं या जो आजादी की बात करते हैं। अब तो वो खुद कह रहे हैं यहाँ पूरा कश्मीर है। अब ये उनके खुद के सवालों का जवाब है। मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं आपने आर्टिकल हटाया, इलीगल किया, हम सुप्रीम कोर्ट में फाइट करेंगे, आर्टिकल को वापस लेके आएंगे, लीगली फाइट करें। हम आपकी तरफ थोड़ी ऐसे हवा में बातें फेंकते हैं, वहां सब कुछ सही है ये, फिर क्यों खुद आप जो बात कह रहे हैं उसका जवाब भी आप खुद दे रहे हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? या उन्हीं से पूछना चाहिए ना, ये अमित शाह से पूछना चाहिए जिसने पार्लियामेंट में 5 अगस्त को कहा था कि कश्मीर में अमन आएगा, कश्मीर में सब कुछ, टेररिज्म खत्म होगा। अब देखिए इस वक्त जो हालात है ना कश्मीर में, मुझे नहीं लगता है 90s में भी इतना खौफ कश्मीर के अंदर था जितना इस वक्त है। अब देखिए टारगेट किलिंग हो रही है, कभी टारगेट किलिंग हुई है या नहीं हुई है, अब हो रही है। आप देखिए टेररिज्म, मुझे नहीं लगता है वो कम हुआ। आप देखिए डेवलपमेंट, अगर कोई एक सिंगल उदाहरण आपके पास है, इन्होंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहां दिया होगा तो मुझे बता दीजिए। जिस तरफ है उस तरफ तबाही दिख रही है। सब सिविल ये जो टारगेट किलिंग्स हो रही है, यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि जब से सिविलियन किलिंग्स हो रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही है, तो कश्मीरियों को एक किस्म का टारगेट बनाया जाता है कि ये लोग कश्मीरी कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के। लेकिन यहाँ पर मैं अगर एक बात पूछना चाहूँगा कि जब ये पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, उस टाइम जब बाहर के कॉलेजेस में वहाँ के लड़कों ने आकर कश्मीरियों को मारा था, पीटा था, जबकि वो सब कैमराज में है, CCTV कैमराज में है, विजुअल वहाँ के आए हैं कि किस तरह से जो है वो लड़के कश्मीरियों को मार रहे हैं। उसका जबकि सबूत है कि वो लोग इन पर हाथ मार रहे हैं और वो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं ली गई? देखिए मैं पहले ही कह रहा हूं ना, इनका दोहरा रवैया है। क्या ना, दोहरा रवैया है। ये मुसलमानों के खिलाफ कानून सारे इस्तेमाल करते हैं, जब नॉन मुस्लिम की बात है तो वहां नहीं करते। देखिए मैं आपको सिंपल एक बात बताऊंगा ना कि ये लोग, देखिए आप सिंपल, मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मुसलमान ने जरा सा भी अपनी जुबान खोली तो उस पर एफआईआर लगा दो। आपका नॉन मुस्लिम कितना भी अनाप शराब मुसलमानों के खिलाफ बोले, इस्लाम के खिलाफ बोले, आप उस पर कार्रवाई नहीं करते। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, इनका दोहरा रवैया। आप दिखाइए, आप इक्वालिटी को इधर लाइए ना। इक्वालिटी खाली नहीं होती कि आप अपॉर्चुनिटी, आप इक्वालिटी देंगे। इक्वालिटी यहाँ लॉ पे भी आती है। अगर आप यहाँ यूएपीए लगाते हैं इस बात पे, तो यहाँ भी यूएपीए लगना चाहिए इस बात पे। इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं टारगेट किलिंग की, उसमें अननोन बताया जाता है, किसी को पता नहीं किसने मारा, किसी को एक गवर्नमेंट की तरफ से एक नैरेटिव चलता है, लोगों सिविलियंस की तरफ से वो दूसरा नैरेटिव चलता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो यहाँ रिसेंटली अभी एक अनंतनाग में और एक शोपियान में जो 2 किलिंग्स हुई है जिसमें नॉन किलर्स थे, उन पे कार्रवाई हुई क्या? उनको सजा दिया गया क्या? किसी को नहीं दिया गया। जब आप नॉन किलर्स को सजा नहीं देते हैं तो अननोन को क्या देंगे? अननोन को कहां से ढूंढेंगे आप? ये तो दोहरा रवैया है। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जब
भारत और पाकिस्तान का मैच था, जिस दिन पूरा कश्मीर बल्कि पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान उसी मैच के साथ लगा हुआ था, उसी दिन कश्मीर के एक जवान को जो है मारा गया, सड़क के बीचों बीच उसको गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जबकि सबको पता है कि उसको जो है किस वजह पे मारा गया और किन्होंने मारा, किसकी गोली से वो मारा गया, लेकिन तब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली गई, बल्कि बात तक नहीं की गई। तभी मैं कह रहा हूँ ना, देखिए उस टाइम सारा कश्मीर, सारा हिंदुस्तान, सारा पाकिस्तान बिजी था किस में? हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होने वाला, वो बिजी थे उसमें। लेकिन यहाँ जुल्म तब भी हो रहा था, तब भी हमने एक नौजवान को खोया जिसको गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जो कि एक वाहिद फर्दन था, घर का जो कमाता था, दूध बेचकर अपने घर वालों को खिलाता था, उसको गोली मारकर हलाक कर दिया गया। और वो सीधे ही क्रॉस फायरिंग में इन्होंने दलील दी, ये क्रॉस फायरिंग, ये भागने की कोशिश की नाके से, ये तो हम 70 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने किसी पे कार्रवाई नहीं की। क्या आप मुझे बताएं, जो शोपियान में फेक एनकाउंटर हुआ था, उन 3 पे कार्रवाई हुई? मैंने सुना था FIR लगा था उस पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई हुई है। लावाईपुरा का कहा गया था, IG साहब ने कहा था भाई 3 दिन 1 हफ्ते में आपके सामने सारे फैक्ट्स रखूंगा। मैंने आज तक वो फैक्ट्स ही नहीं देखे। कहाँ है वो फैक्ट्स? आप देखिए ना, जब आप इस तरह से चलेंगे कहाँ से अमन आएगा कश्मीर में? आपको कश्मीरियों का दिल जीतना होगा। आप जो जिस राह पे आप चल रहे हैं ना, ये नफरत की राह है और ये तबाही करेगी कश्मीर में। आप प्यार से आइए, मोहब्बत से आइए, दिल से आइए, तो कश्मीरी गलत भी लगेगा। आदिल साहब, जिस दिन अमित शाह यहाँ पे आए थे पिछले कुछ दिनों में, तो उन्होंने कहा था कि हमें नौजवानों से बात करनी है, हम नौजवान तबके को लेकर जो है वादी कश्मीर के हर एक मसले को जो है आगे लेकर जाएंगे और यहाँ के हर मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। क्या उन्होंने आपको, जो कि नौजवानों की एक शान बनी हुई है जिला बारामूला से, तो क्या उन्होंने आपसे किसी भी किस्म का राब्ता किया? देखिए, उन्होंने कहा था हम नौजवानों के साथ बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी कहा था हम कौन सी बात, उन्होंने कहा ना हम UAPL लगाएंगे यहाँ के नौजवानों पे, हम PSA लगाएंगे यहाँ के नौजवानों पे, हम सेडिशन लगाएंगे यहाँ के नौजवान। उन्होंने वही बात कही थी। आप खामा बेचारे कश्मीरी कंफ्यूज कर गए, ये शायद बोल रहे हैं हम बात करेंगे। वो बेचारा वो कह रहा था, उस दिन सुबह ही लगाया ना उन्होंने, तो वो वही कह रहा था। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कश्मीर। तो आदिल साहब, इस पूरे मामले को जब आप इस नज़र से देखते हैं कि ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति चला रहे हैं और मुस्लिमों को टारगेट करके जो है अपना वोट बैंक बनाते हैं, ये आपके कहने का मतलब हमें साफ साफ वाज़ह हो रहा है। लेकिन तब भी आप कश्मीरी जो हो, आप लोग जो है, आप लोगों का लीडर एक है जो कि मशहूर लीडर है जिसका नाम जावेद कुरैशी है, वो तब भी जो है इन्हीं ठेकेदारों से मिलकर जो है दिवाली मना रहा है। देखिए, जावेद कुरैशी मैं तो नहीं मानता हूँ, अब खामा उसको लीडर बना रहे हैं, मुझे नहीं। मुझे बस उन मीडिया वालों से अब ये एक सवाल है, उसको इतना लिफ्ट मत दिया करें। आप देखो, उस मीडिया वालों ने उसको सर पे चढ़ा दिया है, उसको है क्या उसकी? अब मुझे बताना, हिस्ट्री जियोग्राफी उसकी क्या है? उसको कौन जानता है? इधर कपड़े फाड़े ना उसने, कौन? वही ना, कपड़े फाड़ के। यही होता है ना, जो पागलपंती यहाँ करेगा ना, वही बनता है हीरो। बताना, उसके साथ 10 लोगों को खड़ा करके दिखाए यहाँ। ये नफरत से कुछ नहीं होगा। उसने सिक्योरिटी लेके रखी है, वो पैसा ले रहा है, तो नफरत फैला रहा है कश्मीरी के खिलाफ। मैं कह रहा हूं आपको, बातचीत के बगैर कुछ नहीं हो रहा। तो आदिल साहब, हमेशा हमको पता है कि जब भी अब इस मामले में इसके खिलाफ या किसी भी मामले के खिलाफ कश्मीरी कोई नौजवान या कश्मीरी कोई भी बात करता है, तो उसके खिलाफ जो है उसी टाइम पर कार्रवाई की जाती है, एक्ट लगाया जाता है। तो उन नौजवानों से जिनके अंदर जज्बात आते हैं और वो कहीं पर भी सच बोलना चाहते हैं, बल्कि झूठ के खिलाफ और धोखों के खिलाफ जो बोलना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, जो नौजवान बोलना चाहता है जुल्म के खिलाफ, बेशक बोले, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गारंटी दी है। इवन क्या ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है ये, कि आप बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। बोलने की आज़ादी आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन मैं इतना, मेरी तरफ से मैसेज उन सब के लिए कि आप इस तरह से बोलें कि आप इनको यहाँ से फ्री हैंड ना दे कि आप पे ये PSA UAPL लगा दें। आप दायरे में बात कीजिए, आप उस दायरे से बाहर मत जाइए। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जुल्म जब बढ़ता है वो मिटता भी है, इंशाल्लाह जुल्म मिटेगा। तो लेकिन आपको एक तरीके से चलना होगा, क्योंकि इस वक्त जो सरकार है ना, वो कुछ देखती व्यक्ति नहीं है। बस बात आ गई तो उठा को जेल में डाल दो। इसीलिए वो मेरी नसीहत है सबके लिए। नौजवान को बोलना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन एक बाउंड्री के अंदर ही बोलना चाहिए। बाउंड्री से बाहर जाते हैं तो इनको फ्री हैंड मिल जाता, फिर जेल। हमारे कितने लाखों नौजवान हमारे जेलों में हैं। अब बताइए, मैं कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यतीम बच्चे पता है कहाँ हैं? कश्मीर के अंदर है। फलस्तीन से भी ज़्यादा मुझे लगता है यतीम बच्चे कश्मीर के अंदर होंगे। अब देखिए, हर दिन यहाँ बच्चों को यतीम किया जा रहा है। हम कहाँ जा, किस तरफ जा रहे हैं? अब ये कश्मीर को समझना होगा कि हम, जब हमारा यहाँ कल कोई रहेगा ही नहीं, तो फिर क्या करना है इस ज़मीन का, फिर क्या करना है इस कश्मीर का? यहाँ वैल्यू है पहले इंसानों की, उसकी कोई कदर नहीं करता है। यहाँ खुश होते हैं लोग, उस तरफ भी खुश, इस तरफ भी खुश। इस खुशी को हमें ख़त्म करना होगा। कौन सी खुशी? ये जो मरने पे जो खून बह रहा है ना, इस खून को पहले हमें ख़त्म करना होगा।
چاہے وہ کس طرف کا بھی خون بہ رہا ہے. میرے حساب سے سب سے بڑی آزادی کشمیریوں کے لیے وہی ہوگی جس دن یہاں پہ گن پہ سیل لگ جائے گی, جس دن یہاں پہ سیز فائر ہوگا, جس دن یہاں دونوں طرف کا گن بند ہوگا, جس دن یہاں خون بہنا بند ہوگا. میرے لیے سب سے بڑی آزادی وہی ہے. تو عادل صاحب بہت بہت زیادہ شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکال کر جو ہے قیمتی اور انمول باتیں ہمارے سامنے رکھی, اس کے لیے آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ. انشاءاللہ لگاتار آپ کے ساتھ بات چیت ہوتی رہے گی, چاہے پھر ہمارے لائیو سیشن ہو یا کبھی انشاءاللہ رمن ڈیبیٹ بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ رمن آپ کے ساتھ. تو ابھی کے لیے فی الحال بہت بہت زیادہ شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ ہمارے ساتھ جو تھے شخصیت, ان کا نام عادل نذیر خان صاحب ہے, جو کہ ایک مانی جانی شخصیت ہے وادی کشمیر کی, جو ہمیشہ سچ پر بولنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی سلامتی رکھے, اور مجھے فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. خیال رکھیے گا خود کا اور خود کے گھر والوں کا, کیونکہ دوسرا کوئی خیال رکھنے والا آئے گا نہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے, تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.